Very good morning, students. Today we are going to see section 13, that is to say divorce under Hindu Marriage Act. Now, what do we mean by the term divorce and what are the grounds for a divorce and what are basically the case laws relating to divorce? So that is what the popular case laws relating to divorce, that is what we are going to see today. Now, what do we mean by the term divorce? Now, specifically, Section 13 of Hindu Marriage Act provides for the grounds of divorce, but it does not speaks about what do we mean by the term divorce. Now, what do we mean by the divorce in general? Divorce means end of the marriage tie. End of the marriage tie. The end of marriage tie could be in two ways. Firstly, either a death of the party or the divorce by the party. So whenever a divorce takes place between a married couple, then in that case we say that there is a end to a marriage tie between the couple. So what could be the grounds for divorce that has been specifically provided under section 13 of the Hindu Marriage Act? Now these grounds are common to both husband and wife. Yes, definitely there are some additional grounds which has been given to a wife, but so far as major grounds are very common to both husband and wife, and in addition to these, certain grounds are exclusively provided for the wife to file a petition for a divorce against the husband. That is to say, if a person want to have a divorce, then in that case they have to file a petition for the divorce, and then only the divorce would take place between the couple. That would be considered to be a valid divorce between the parties. Now let us see what are the grounds which are common for both the husband as well as the wife. Now these grounds, as we have already discussed, could be: first is adultery. If either of them after marriage had a voluntary sexual intercourse with any person other than his or her spouse, okay, then in that case, this adultery could become a ground for divorce. This was again a ground for what? This was again a ground for judicial separation. That is what we have studied in our earlier lecture, that for the whatever the grounds of divorce are there are the similar grounds which are also applicable over the judicial separation. So adultery means what? If either of them, either husband or a wife, after the marriage had a voluntary sexual intercourse with any other person who is not the wife nor a husband of this particular spouse, then in that case it would be termed to be a adultery, and this would become a ground for divorce. Now let us see the another one is the cruelty. After marriage has treated the petitioner or the other party with a cruelty. Now if a person, because he has now filed the petition for a divorce and therefore been called as a petitioner over here, and in his petition what he has made a ground for divorce, he has made a cruelty a ground for divorce. So cruelty, if takes place after marriage, it could include both type of cruelty, the physical as well as a mental cruelty. Then in that case, a petition could be filed for the purposes of seeking a divorce from the other party. Now, third one is the desertion. Desertion means what? Leaving the particular person. Desertion means what? Leaving the spouse. Has deserted the party for conversion to another religion. अब उसने छोड़ दिया है उसको. Desertion मतलब छोड़ देना. और वजह क्या है कि ये किसी दूसरे रिलीजन को कन्वर्ट हो गया है. अब क्योंकि दूसरे रिलीजन को कन्वर्ट हो गया है तो डेफिनेटली एवरीवन इज हैविंग अ राइट टू हैव अ रिलीजन. किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट करने का राइट है. बट क्या इस ग्राउंड के ऊपर डिवोर्स होना वाजिब है? तो ये बोलता है इसके ऊपर डेफिनेटली देयर इज अ हीटेड डिबेट इन दिस. बट सो फार इज द एप्लीकेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड द प्रोविजन टू इट, देन इन दैट केस डेफिनेटली बिकॉज दिस एक्ट particularly applies only to Hindus, therefore those who are converted to some another religion would not be governed by this, and for this reason desertion under this particular act would be considered to be one of the ground for asking the divorce.
Next one is the insanity. Insanity is an incurable state of unsound mind or suffering from such a mental disorder. Because of that, the person is not in a position to reasonably think of or to reasonably live with the respondent. Then in that case, such a insanity would also become a ground for seeking a divorce under Hindu Marriage Act. Now let us see what are the other grounds. Firstly, the conversion. Conversion, if person ceases to be a Hindu and if he convert himself to some another ground, that as we have discussed in our earlier slide, it could become a ground for divorce. But again, a person is having a liberty to enjoy the religion which he desire, which he want to enjoy, and on that ground the marriage tie would not come to an end, provided it would become an optional. That is to say, if a person aggrieved by such kind of conversion of the other spouse, then may file a petition under Hindu Marriage Act section 13 and can get the marriage dissolved and can obtain a degree of a divorce. Next is venereal leprosy. If a person is suffering with a incurable form of a leprosy, which could not be actually treated, and there is a chances of getting it spread, then in that case, definitely this leprosy would become a ground for divorce. Next is the venereal disease. Venereal disease means what? Which is in a form of a communicable, communicate हो सकती है वो, कम्युनिटी स्प्रेड हो सकती है ऐसी। अगर मान लीजिए वेनरल डिसीज से अगर कोई पर्सन सफर कर रहा है, देन इन दैट केस इट वुड बिकम अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। नाउ इफ अ पर्सन हैज रिनाउंस द वर्ल्ड, ऐसे पर्सन के साथ रह के करेंगे क्या? ही हैज नाउ रिनाउंस द वर्ल्ड, सन्यासी बन गया है एंड वो रिलीजियस इसमें इतना ज्यादा ये हो गया है, इतना ज्यादा डीप उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है कि हम बोलेंगे कि उसने एक तरीके से वर्ल्ड ही रिनाउंस कर दिया है, देन इन दैट केस ऑल्सो इट वुड बिकम अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। Next is if a spouse has not been heard for a long period of 7 years or more. If the person has not been, or if a spouse has not been heard for more than 7 years or more than 7 years as being alive, हमें पता ही नहीं है कि वो जिंदा है, 7 साल से ऊपर हो गया इस बात को, या 7 साल या 7 साल से ऊपर हो गया, और किनको नहीं पता है? जो लोगों को इस बंदे के बारे में नेचुरली पता होना चाहिए था। हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गई, पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, रिलेटिव्स हो गए, इनको इसके बारे में पता होना चाहिए था, बट उनको भी पता है क्या? नहीं पता है। और पता नहीं है, कब से नहीं पता है? कि भाई ये 7 सालों से हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, या 7 सालों से ज्यादा हो गया हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ऐसा अगर मान लीजिए पर्सन है, तो वाइफ जो है या फिर हस्बैंड जो है वो क्या करेगा? उस मैरिज टाई से बंधे रहने में अब कोई देखा जाए तो मीनिंग है क्या? नहीं। तो कैन मेक अ पिटिशन फॉर डिवोर्स बिफोर द कोर्ट एंड कैन गेट द मैरिज टाई डिसॉल्व। Now next is what? A decree of a judicial separation. अगर decree of a judicial separation pass हुआ है, yesterday we saw कि हमने decree for हमने judicial separation के लिए petition डाला था and accordingly उसके ऊपर हमें decree हुई, और decree हो जाने के बाद में husband and wife को दोनों को एक दूसरे से separately रहना था, है ना? 1 साल या उससे ज्यादा अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के तहत एक दूसरे से अलग रहते हैं, देन इन दैट केस, और उस दौरान भी उनमें किसी तरीके का कंसेंट होना या कॉम्प्रोमाइज होना ऐसा स्कोप नहीं होता है, या फिर वो माइंड मेकअप नहीं कर पाते हैं कि उनको साथ में रहना है, देन इन दैट केस क्या कर सकते हैं? अब पहले हमने डिग्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन ऑब्टेन किया था, अब 1 साल या उससे ज्यादा समय हो गया है और दोनों भी पार्टी जो है वो एक दूसरे से अलग रह रही है, दूर रह रही है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग? अब हम डिवोर्स का पिटिशन डाल के मैरिज टाई जो है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन में और एक बात ऐसी बोली है कि आफ्टर पासिंग अ डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स, अगर मान लीजिए डिग्री पास की फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, कि भाई अदर पार्टी को डायरेक्शन दिया गया कि आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के साथ आके रहिए,
बट सामने वाला पर्सन जो है वो नहीं आता है रहने के लिए, ही डू नॉट कंप्लाई विद द डिग्री फॉर अ स्पैन ऑफ 1 year, है ना, then in that case what would be there, they has not complied with the degree for a span of 1 year, then in that case 1 साल कंप्लीट हो जाने के बाद में वो क्या कर सकते हैं, डिवोर्स के लिए पिटिशन फाइल कर सकते हैं। एंड इन दिस सिचुएशन ऑल्सो जो मैटर है उसको हम क्या करेंगे, डिवोर्स के पिटिशन को कंसिडर करते हुए डिवोर्स ग्रांट कर देंगे दोनों भी पार्टीज को, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये तो जो ऊपर अभी हमने देखे, दीज आर द कॉमन ग्राउंड्स विच आर अवेलेबल टू बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ। नाउ द ग्राउंड्स विच आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल टू द वाइफ, द ग्राउंड्स विच आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल टू द वाइफ आर, फर्स्टली बायोगामी। फर्स्टली कौन सा, बायोगामी। बायोगामी मीन्स व्हाट, इफ अ हस्बैंड हैज अ वाइफ अलाइव इन एडिशन टू द पिटिशनर। कहने का मतलब है हस्बैंड जो है उसकी ऑलरेडी वाइफ जिंदा है और उसने किसी दूसरी वुमन के साथ जो है ही इज लिविंग टुगेदर और ही हैज गॉट मैरिड, देन इन दैट केस बायोगामी जो है हम कहेंगे कि दिस इज वन ऑफ द एडिशनल ग्राउंड विच इज अवेलेबल टू अ वाइफ। Next is that the husband has after the marriage been guilty of a rape, sodomy and bestiality। ये ग्राउंड के ऊपर भी यानी हस्बैंड जो है वो गिल्टी है रेप का, सोडोमी का या बेस्टिलिटी का, देन इन दैट केस ऑल्सो हस्बैंड जो है वो इस ग्राउंड के ऊपर वाइफ जो है हस्बैंड से क्या मांग सकती है, डिवोर्स मांग सकती है। Next is degree of order awarding maintenance। If a wife is granted a maintenance by the court, कोर्ट में वाइफ ने मेंटेनेंस का एप्लीकेशन मूव किया था, अकॉर्डिंगली कोर्ट ने वाइफ को मेंटेनेंस ग्रांट किया। मेंटेनेंस मिलने के बाद से हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सेपरेट सेपरेट रह रहे हैं और ये सेपरेट सेपरेट रहते हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, देन इन दैट केस वाइफ जो है वो क्या कर सकती है, अपना अगर मान लीजिए वो अनमैरिड ही रहती है, प्योर रहती है, चेस्ट रहती है और साथ ही साथ वो मान लीजिए अपनी इनकम से अपना कंप्लायंस नहीं कर सकती पूरा, देन इन दैट केस शी इज एंटाइटल्ड टू गेट अ डिवोर्स बट टू रिटेन द राइट ऑफ मेंटेनेंस। तो यहाँ पे वाइफ जो है जिसको ग्रांट किया गया है मेंटेनेंस का राइट, यदि वो अपने हस्बैंड से 1 साल से अलग रह रही है या 1 साल से ऊपर के समय से अलग रह रही है तो मेंटेनेंस उसका कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर लेती या जब तक कि वो अपनी तरफ से खुद ही मेंटेनेंस छोड़ नहीं देती या फिर मान लीजिए कोई ऐसी और वजह नहीं होती कि जिसमें मेंटेनेंस बंद हो, देन इन दैट केस वाइफ जो है वो आस्क कर सकती है अपना मेंटेनेंस का राइट रिटेन करते हुए द डिवोर्स from the husband, and for that purposes she may file a petition before the court. Next is the repudiation of the marriage. Next is repudiation of the marriage. Repudiation of the marriage में that her marriage has taken place before she attained the age of 15 years। हिंदू मैरिज में हमने क्या बोला, एक एज है, पर्टिकुलर एज है शादी की और वो जो है गर्ल के लिए कंप्लीटेड 18 इयर्स है इस एक्ट के अनुसार और जो ब्राइड ग्रूम है उसके लिए कौन सी एज है, ब्राइड ग्रूम के लिए 21 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन यदि हमारा कस्टम हमें परमिट करता होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर कस्टम जो है परमिट करता है तो 15 एज जो है ये बेसिकली अर्लियर हिंदू लॉ में दी गई थी। तो अगर मान लीजिए हमारी मैरिज जो है वो टेक प्लेस हुई है बिफोर वी हैव अटेंडेड द एज ऑफ 15 इयर्स एंड शी हैज repudiated द मैरिज आफ्टर अटेनिंग दैट एज बट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 इयर्स, यानी कि उसने 15 साल के बाद में अपनी मैरिज को रेपुडिएट कर दिया, एंड कर दिया है, लेकिन उसने जिस एज में अपनी मैरिज को एंड किया है उसमें उसने अभी तक 18 इयर्स कंप्लीट नहीं किया है और यदि उसने अपना राइट एक्सरसाइज किया है फॉर रेपुडिएशन ऑफ द मैरिज, यदि उसको राइट अवेलेबल था तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टम और ट्रेडिशन, देन इन दैट केस वाइफ को हम बोल सकते हैं कि ये एडिशनल राइट अवेलेबल है जिसमें कि वो अपनी मैरिज को क्या कर सकती है, डिसॉल्व कर सकती है डिवोर्स का पिटीशन फाइल करके। नाउ लेट अस सी डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट जो है इसमें दोनों भी हस्बैंड एंड वाइफ साथ में आते हैं, डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं, दोनों भी एप्लीकेंट होते हैं, नॉन एप्लीकेंट में कोई नहीं होता है और ये सेक्शन 13B में इसका प्रोविजन दिया गया है। अगर हम बात करते हैं अंडर सेक्शन 13B की ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, अ प्रोविजन ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट प्रोवाइड किया गया है
इस प्रोविजन के अनुसार द हस्बैंड एंड वाइफ कैन फाइल अ जॉइंट पिटिशन ऑफ डिवोर्स टू अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिया गया है, बट प्रेजेंट में हमारे पास में फैमिली कोर्ट है। अगर फैमिली कोर्ट है तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल नहीं करेंगे। फैमिली कोर्ट इज अ डिफरेंट, बेसिकली हैविंग अ डिफरेंट स्टेटस, और ये एक प्रिंसिपल बेंच होता है, और इसीलिए हम फैमिली कोर्ट में हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो जॉइंट पिटिशन फाइल करेंगे डिवोर्स की। इन केस दे वांट टू फाइल अ सेपरेट पिटिशन अगेंस्ट ईच अदर, अगर मान लीजिए वो सेपरेट सेपरेट भी फाइल करना चाहते हैं तो वो सेपरेट सेपरेट भी फाइल करना चाहते हैं, साथ में आके ज्वाइन करना चाहते हैं तो साथ में आके भी वो डिवोर्स का पिटिशन फाइल कर सकते हैं। नाउ फॉर द पर्पसेस ऑफ फाइलिंग अ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, कुछ कंडीशंस है जिसे फॉलो करना चाहिए या जिसे कंप्लायंस किया जाना चाहिए। कौन कौन से कंडीशंस हैं? सबसे पहले तो हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो एक दूसरे से 1 साल के ऊपर के समय से कैसे रह रहे हैं? अलग रह रहे हैं। नेक्स्ट इज दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, और वो एक दूसरे से अलग एक दूसरे के साथ में रह भी नहीं पा रहे हैं। दे डू नॉट वांट टू स्टे टुगेदर, ना ही वो रह पा रहे हैं। that they has mutually agreed that the marriage should be dissolved, and it has been now actually decided between husband and the wife that they want to get their marriage dissolved, that they has mutually agreed that the marriage should be dissolved. If this is the scenario, then in that case the divorce petition could be filed by the husband and the wife, asking them for a mutual divorce by the mutual consent before the court. Now next is आफ्टर फाइलिंग द पिटिशन फॉर डिवोर्स, द कोर्ट जो है वो क्या करेगा? फिक्स करेगा एक डेट फॉर हियरिंग आफ्टर 6 मंथ। कहने का मतलब ये जो बीच का जो 6 महीने का टाइम पीरियड है, ये क्या रहेगा? ये बेसिकली काउंसलर के पास का समय रहेगा, जिसमें काउंसलर जो है वो हेल्प करेगा हस्बैंड एंड वाइफ को, दोनों को म्यूचुअल डिवोर्स की जो भी वजह होगी उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, और दोनों के बीच में किसी भी तरीके से अगर ये हो सकता है, मतलब कॉम्प्रोमाइज हो सकता है या किसी भी तरीके से सुलह हो सकती है, उस बात को ध्यान में रखने के लिए ये 6 महीने का जो टाइम पीरियड जो है वो बेसिकली रखा जाता है। आफ्टर फाइलिंग द पिटिशन फॉर अ डिवोर्स, कोर्ट जो है वो पहली डेट बेसिकली फिक्स करेगा, वो भी कब की? 6 महीने बाद की। If within 6 months both parties change their mind, and then they would be allowed to do so, and then question of divorce would not arise. अगर ये जो 6 महीने के पीरियड में जिस दौरान उनकी काउंसलिंग हो रही है, अगर उनका माइंड चेंज हो जाता है और अब वो डिवोर्स नहीं चाहते हैं, देन इन दैट केस डेफिनेटली उनको डिवोर्स देने की कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता। लेकिन यदि मान लीजिए 6 महीने के बाद में भी वो फॉर्म है अपने डिसीजन के ऊपर कि नहीं उनको डिवोर्स चाहिए ही, देन इन दैट केस काउंसलर जो है अकॉर्डिंगली अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, वुड सबमिट इट बिफोर द कोर्ट, एंड कोर्ट जो है रिपोर्ट देखने के बाद में दोनों भी पार्टी को डिवोर्स दे देगा। If they divorce by mutual consent, the court will have decide a matter of divorce within 18 months from the filing of the petition of the divorce. तो जो भी हमने बेसिकली डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट कोर्ट के सामने दिया था, तब से लेके 18 मंथ्स के अंदर, तब से लेके 18 मंथ्स के अंदर कोर्ट जो है वो क्या करेगा? डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट को फाइनली डिसाइड करेगा, सो दैट बोथ द पार्टीज जो है वो एक दूसरे से फ्री हो जाए, दे विल बी फ्री टू इवन गेट मैरिड विद सम अनदर पर्सन। Now let us see what is been provided under section 14. No petition for divorce to be presented within 1 year of a marriage. यानी कि हम डिवोर्स का पिटिशन कभी भी मैरिज के 1 साल के अंदर अंदर हमको फाइल नहीं करना है। सेक्शन 14 जो है ये एक तरीके का लिमिटेशन डाल रहा है कोर्ट के ऊपर कि उसने क्या नहीं करना है। कोई भी डिवोर्स का पिटिशन जो 1 साल के अंदर आता है मैरिज के, उसने उसको एंटरटेन नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, नो कोर्ट शैल एंटरटेन द पिटिशन, फाइलिंग ऑफ द पिटिशन कुड नॉट बी बार्ड, बट एंटरटेनमेंट ऑफ द पिटिशन कुड बी बार्ड। यानी कोर्ट जो है उस मैटर को एंटरटेन करने से रोका जा सकता है कोर्ट को, फाइलिंग ऑफ द सूट कुड नॉट बी बार्ड। So according to this section, no court shall entertain the petition of divorce unless the party have completed the marriage. If 1 year is not completed, then party's petition of divorce shall not be accepted. अगर 1 साल complete नहीं हुआ है मैरिज को, तो पार्टी के पिटिशन को जो डिवोर्स से रिलेटेड है उसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट इज व्हाट, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। इस बात को, ये तो एक जनरल रूल हो गया, लेकिन इसको एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या बोलता है? एक्सेप्शन बोलता है कि अगर मान लीजिए पार्टी का 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है मैरिज का और अगर उसको डिवोर्स चाहिए,
तो प्रोविजन तो ये कहता है कि 1 साल कंप्लीट होना चाहिए, बट यहाँ पे अगर मान लीजिए पार्टी फिर भी डिवोर्स चाहती है और उसका 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या वो डिवोर्स ऑब्टेन नहीं कर सकती है? ऐसा नहीं है। उसको क्या करना पड़ेगा? परमिशन के लिए कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। कोर्ट में परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कोर्ट जो है वो परमिशन अगर देता है, देन इन दैट केस ओनली डिवोर्स का पिटिशन विद इन द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर हम क्या कर सकते हैं? फाइल कर सकते हैं। If a party communicate to the court that the party is suffering from extreme danger, this is an example कि कौन से ग्राउंड के ऊपर कोर्ट जो है परमिशन देगा। अगर पार्टी जो है वो बताती है कोर्ट को कि वो सफर कर रही है एक्सट्रीम डेंजर या फिर हार्डशिप से, और अगर उसको ये 1 साल के अंदर छुड़ाया नहीं गया तो एनीथिंग कुड हैपन विद द पार्टी, और यदि कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है, देन इन दैट केस कोर्ट जो है वो अलाउ करेगा पार्टी को कि वो फाइल करे पिटिशन ऑफ डिवोर्स प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। ठीक है। और ऐसे वक्त में लेटर ऑन, सपोज फॉर एग्जाम्पल कोर्ट को ऐसा लगता है कि पार्टी ने कोई बात छुपाई है कोर्ट से, और छुपा के या कोर्ट को मिसलीड करके उसने परमिशन ऑब्टेन कर लिया है, तो क्या अब जो परमिशन ऑब्टेन किया है 1 साल के अंदर पिटिशन फाइल करने का, वो वैसा का वैसे ही रहेगा? नहीं। कोर्ट को जब ऐसा लगेगा कि पार्टी ने कोर्ट को मिसलीड किया है, कुछ बातें छुपाई हैं और कुछ बातें छुपा के कोर्ट से बेसिकली परमिशन ले ली है 1 साल के अंदर मैटर फाइल करने के लिए, तो कोर्ट जो है पार्टी को बुलाएगा और उनको बोलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर क्या करे, वो मैटर फाइल करे, अपना अर्लियर दिया हुआ परमिशन जो है कोर्ट उसको रिवोक बैक कर लेगा। इन केस द कोर्ट हैज इशूड अ डिक्री, अगर मान लीजिए कोर्ट ने डिक्री इशू कर दी है, and while issuing it court realized that some misleading information was given or concealment of the fact is there, then in that case court would ask the party that a decree shall come in force only after completion of 1 year of the marriage। अगर मान लीजिए कोर्ट ने क्या कर दिया, डिक्री भी पास कर दिया, और ये बात कोर्ट को बाद में रियलाइज होती है कि उसको कुछ मिसलीड किया गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन उससे कंसील की गई है, और कंसीलमेंट या मिसलीड की वजह से कोर्ट जो है उसने ऑलरेडी डिवोर्स ऑफ डिक्री विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर ही पास कर दिया है, तो कोर्ट जो है अपना मिस्टेक को कैसे रेक्टिफाई कर सकता है? कोर्ट जो है अपने मिस्टेक को रेक्टिफाई करेगा ये बोल के कि ये जो मैंने डिग्री पास की है डिवोर्स की, ये कब इफेक्ट में आएगी? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। स्टूडेंट्स, these were the provision relating to the divorce by mutual consent। now the divorced person when married, divorced person जो है वो कब वापस शादी कर सकते हैं? this has been provided under section 50। so if after divorce there is no provision for appeal, अगर डिवोर्स के बाद में बेसिकली देखा जाए तो जैसे अभी म्यूचुअल डिवोर्स लिया तो देर इज नो प्रोविजन ऑफ अपील, देन इन दैट केस डिवोर्स पर्सन में मैरी अगेन। ठीक है। देन आफ्टर डिवोर्स द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग अपील हैज बीन अलाउड, यानी कि वो म्यूचुअल डिवोर्स नहीं था, हमने पिटिशन फाइल किया, हमने कॉन्टेस्ट किया एंड अकॉर्डिंगली डिवोर्स का डिग्री हमने ऑब्टेन किया, जो अदर पार्टी था वो एग्रीव्ड था, उसके पास में अपील का टाइम था, वो अपील में गया या फिर अपील में नहीं गया, ठीक है, और टाइम जो है वो खत्म हो गया, देन इन दैट केस डिवोर्स कपल जो है वो मैरी कर सकते हैं। फिर इफ अ पार्टी हैज अपील टू अ हायर कोर्ट आफ्टर डिवोर्स एंड इफ दैट अपील इज डिसमिस्ड, अगर पार्टी जो है उसने हायर कोर्ट के पास में अपील किया डिवोर्स हो जाने के बाद में, और अपील में वो मैटर जो है वो क्या हो गया? डिसमिस हो गया, देन इन दैट केस आल्सो डिवोर्स पर्सन्स कैन मैरी। now these are the things which we have seen, students। I hope you have understood the concept।